Dear students, in this video on electrostatics, we will discuss some numerical problems on dipoles and NCERT problems. So let us begin with a simple problem based on dipoles. So here we have a dipole consisting of plus minus 5 nanocoulomb charge with a separation of 2 millimeter. So the first part is find the dipole moment. So we have a dipole of consisting of plus 5 nanocoulomb charge, minus 5 nanocoulomb charge and separation as 2 millimeter. Now you know the relation for dipole moment, and the relation is charge into separation between the two charges. So one of the charges is 5 into 10 to the power minus 9 coulomb. See, nano means 10 to the power minus 9. Separation is 2 millimeter. So 2 into 10 to the power minus 3. Milli means 10 to the power minus 3 meter. Right. So now you have to convert everything into SI unit. Simplifying it, the dipole moment comes out to be 10 to the power minus 11 coulomb meter. See, the dipole moment is 10 to the power minus 11 coulomb meter. Right. Now the next part is second part. Find the torque on it when it is placed in an external electric field of 2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb at an angle of 30 degree. Right. So you know the relation for torque also. Look at this. The relation for torque is Pe sin theta. The value of P you have just found out, 10 to the power minus 11, and electric field is given 2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, or angle between P and E is 30 degree. So sin 30, and the value of sin 30 is 1 by 2. So simplifying all this, the relation comes out to be 10 to the power minus 8 Newton meter. See, the SI unit of torque is Newton meter. You have to be very careful about SI units. Now let us look at the third part. The third part is how much work will be done in rotating this dipole from position of stable equilibrium to unstable equilibrium. आपको पास डाइपोल है, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट करना है और उसका वर्क डन निकालना है. राइट. So you already have this relation that work done is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2, and you know that for stable equilibrium the position is theta 1 is equal to 0 degree, or dipole moment is parallel to electric field, and for unstable equilibrium the dipole the angle theta 2 is 180 degree. The dipole moment and electric field are in opposite directions. So putting the values, you get PE is equal to cos 0 degree minus cos 180 degree, and cos 0 की value 1, cos 180 की value minus 1, और 1 minus minus 1 will give you 2. So work done is 2 PE, और आपके पास P और E की values पहले से हैं तो उन values को डाल दीजिए, and then you get this relation. See, 4 into 10 to the power minus 8 joule. This is work done, so the unit is joule. Now the next problem again based on dipole moment only. Dipole only, and let's see what it is. Now again we have two charges plus minus 5 nanocoulomb placed at 2 millimeter. Find the electric field at the axial point 50 centimeter away from it. तो आपके पास डाइपोल है, उसका साइज है 2 मिलीमीटर, और उसके एक्सियल पॉइंट पर 50 सेंटीमीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है. नाउ सी द डिस्टेंस इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ डाइपोल, तो हम सीधे सीधे वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट अस टेक द एक्सियल पोजीशन केस. सो हियर एक्सियल पोजीशन. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन इज नोन टू यू, that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2
p upon r cube, right? So value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9, 2, and value of p, see p is equal to q into 2a, तो ये 2 आपका आ गया और p की वैल्यू है 5 नैनो कूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और सेपरेशन इज 2 मिलीमीटर, सो दिस इज द सेपरेशन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। से हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया है। नाउ कम्स डिस्टेंस आर, ना आर इज 50 सेंटीमीटर, ना 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सेंटी मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2, और उसको क्यूब करना है, आर क्यूब हमने कर दिया, ठीक है। सो सिंप्लीफाइंग ऑल दिस वी गेट द फाइनल रिजल्ट एज 3.6 इंटू 10 और 36 न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है आपको। नाउ द नेक्स्ट केस इज यू हैव टू फाइंड आउट electric field at an equatorial point which is at 20 centimeter from the dipole. So यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube. Now here again the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is here, charge की वैल्यू, सेपरेशन की वैल्यू, बट द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर और पोजिशन इक्वेटोरियल है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और उस पूरे का क्यूब। सिंप्लीफाई करके यू गेट दिस रिलेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। नाउ इन द प्रीवियस केस एक्सियल पॉइंट पर हमारा डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट। इन दिस केस द डाइपोल मोमेंट एंड electric field are anti-parallel or in opposite directions. So that you have to remember and you have to tell the direction also. Direction के भी marks होंगे. Now, here I am going to discuss a very important topic, motion of a charged particle in an electric field. So, let us try to understand it first. See. ये डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है, मगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कई सारे हैं और वो एग्जाम में भी आते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल केस। इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंटरिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेलोसिटी v पैरेलल टू इट, राइट। सो ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E के पैरेलल इसके अंदर घुस रहा है, then this charge will experience a force along the direction of electric field, right, and that force will be equal to charge q into E, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो the charge will experience a force along the same direction, right, and this acceleration will be equal to force upon mass, that is QE upon m, ठीक है। So it means charge plus Q will continue to move along a straight path, along the same path, parallel to electric field with acceleration, constant acceleration. Now what will happen if we have a negative charge? This negative charge is moving in electric field E with velocity v. Now direction of velocity is this one, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, फोर्स लगा इधर F और वेलोसिटी है इधर v, तो इट्स वेरी क्लियर दैट एक्सेलरेशन जो है फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, राइट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स इस नेगेटिव चार्ज का रिटार्डेशन होगा, लेकिन पाथ इसका अभी भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। इज दैट क्लियर? सो इट मीन्स दैट वेदर इट इज अ नेगेटिव चार्ज or a positive charge, if they move parallel to electric field, their path will be a straight line only.
Positive charge will experience acceleration and negative charge will experience a retardation. ठीक है? But what if the charge is not moving parallel to it? What if a charge is entering in an electric field along its perpendicular? Say a situation like this. We have a positive charge, electric field है y axis के along और x axis के along यहाँ पर चार्ज घुस रहा है वेलोसिटी v से, इनिशियल वेलोसिटी v से. नाउ पॉजिटिव चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहाँ पर ये लग गया इसके ऊपर फोर्स. ठीक है. अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, यानी कि इस चार्ज का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, वाई डायरेक्शन में ही होगा. ठीक है. लेकिन इस चार्ज पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो. तो इसका मतलब फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन विल आल्सो बी ज़ीरो. एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. दैट मीन्स द चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है. लेकिन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, तो चार्ज थोड़ा सा ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा और ऊपर वाला फोर्स इसको ऊपर खींच लेगा. फिर ये आगे मूव करेगा, फिर ये ऊपर वाला फोर्स इसको ऊपर खींचेगा. सो इन दिस वे वी एक्सपेक्ट अ कर्व पाथ टू बी फॉलोड बाय द चार्ज. हम ये कर्व पाथ की उम्मीद करते हैं कि इसका पाथ कर्व्ड होने वाला है. So now we wish to find out relation of this path followed. इन दोनों मोशंस का x एक्सिस और y एक्सिस के मोशंस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्या होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट. You have done similar kind of derivation in class 11th for projectile motion. So it will be easy to understand. So let's see. The charge plus q is entering the electric field at 90 degree with velocity v along x-axis. ठीक है. Now force on plus q charge F is equal to QE along direction of electric field. Acceleration of charge, now acceleration is force upon mass. So acceleration will be QE upon m along electric field. Now one thing to note is that this एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. ठीक है. अब फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ज़ीरो. तो अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्स और वाई एक्सिस की तरफ. राइट. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू आफ्टर टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस. अब आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया. नाउ इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही है v, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है, a इज़ ज़ीरो. तो हमारे पास बचा x इज इक्वल टू v इंटू टी. इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारे पास. अब अलोंग y एक्सिस देखें, तो अलोंग y एक्सिस के लिए फॉर्मूला वही है डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज ज़ीरो, तो यू वाई ज़ीरो है आपके पास, वो वैल्यू हमने ज़ीरो रख दी. ठीक है. तो यू वाई की वैल्यू ज़ीरो हमने कर दी. अब हाफ एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम निकाला है हमने इंटू टी स्क्वायर. राइट. अब हाफ यहाँ पर है, क्यू ई अपॉन एम हमने यहाँ से ले लिया. टी की वैल्यू चाहिए ना. इक्वेशन 1 से हमें मिलेगी वैल्यू टी की. नो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी. इस वैल्यू को उठा के हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, एक्स अपॉन वी. अब क्या करते हैं कि सारे कॉन्स्टेंट्स को ब्रैकेट में आप अलग कर लीजिए. सो कलेक्टिंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स वी गेट वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर.
So you can see that the term inside the bracket is constant. So this is something like y is equal to kx square. And you know that this is an equation of a parabola. So that means the charge will follow a parabolic path. तो आपको हमने 3 स्पेशल केसेस ले लिए. अगर एंगल 0 है तो चार्ज पैरेलल चलते चले जाएंगे. अगर चार्ज 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे घुसता है तो पैराबोलिक पाथ है. इन तीनों के अलावा कोई और एंगल भी होगा तो चार्ज पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा. एंड नाउ इसी डेरिवेशन पर बेस्ड 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, बल्कि एक और भी है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं. तो अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन एज इट इज. अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m and charge minus q enters the region between 2 charged plates initially moving along x-axis with the speed of vx. The length of plate is L and an uniform electric field E is maintained between the plates. Show that the vertical deflection of particle at the far edge of the plate is this much. Okay? तो अब आपको पहले मैं प्रॉब्लम समझा दूं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक है नेगेटिव चार्ज -q. ये -q इन प्लेट्स के बीच में घुस रहा है और इन प्लेट्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन प्लेट्स के अक्रॉस. सो सपोजिंग कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली प्लेट अगर पॉजिटिव है और ये नीचे वाला, दोबारा से I'll do it again. I've chosen these 2 plates, parallel plates, right, with charge say plus q here and minus q on this plate. So we have electric field from top to bottom, right? ठीक है. अब हमारे पास है एक चार्ज -q. अब -q इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी v. तो अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये चार्ज इट इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉलो अ पाथ लाइक दिस. बिल्कुल वही वाला डेरिवेशन है जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया. एंड द लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज गिवन टू बी L. तो आपको ये पता करना है कि इस चार्ज का ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा. ठीक है. सो आई होप द प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लियर. ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है. एंड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ओनली यू कैन फाइंड आउट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन. And similar is the problem in this 1.34 also. Thank you.